students of class 9. Once again welcome to the online classes. So, in the previous video we have studied about the real numbers and their decimal expansion. In there we have studied about terminating, non-terminating, repeating and non-terminating, non-repeating. We have studied 3 decimal expansions. Okay, and we have seen examples related to them, example 6 and example 7. How to do decimal expansion, how to identify terminating, non-terminating, repeating and non-terminating, non-repeating numbers. How to show that any number in the form of p by q. So, same way we will taking today example number 8. So, open your textbook. Example 8. So that 1.272727 and so on equals to 1.27 bar can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q does not equals to 0. So, what is the question? We have to show that 1.272727 and so, which is equals to nothing but 1.27 bar, can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q does not equals to 0. So, what we have to do is, we have to show that this number in the form of p by q. And what is p and q? P and q are nothing but the integers and q must be not equals to 0, because if it is 0 then the number must be undefined. वो हमारा undefined हो जाएगा, ठीक है? So, let us do the solution. This example is same as example number 8. Example number 7. But what is the difference here? After decimal point, the repeating numbers are 2, 2, 2. In example number 7, the repeating numbers are only 1, 1.7777 something like that. Okay? So what to do? Let us suppose this x. Let x equals to 1.272727 and infinitely many. It is repeating 2727272727. Okay? Now, I have guide you in the previous video what to do after this step. After decimal point we have repeating the 2 digits. So what to do? Multiply both the sides by 100. If it is repeating only 1 digit, then we have to multiply by 10. If it is repeating with 3 digits, then we have to multiply by 1000. So what I am doing is multiplying both the sides by 100. So what we get is, multiply here by 100. So 100 multiplied by x is equals to, what is here? 100 multiplied by 1.27272727 and so on. So the next step is 100 multiplied by x is nothing but 100x, which is equals to, now we will multiplying this number by 100. So the decimal point comes this side after 2 digit. Okay, because here there are 2 zeros. So the number is 127.272727 and so on. What we will do in the next step? We will split this number. So let us write here 100x equals to. Now in previous example we have done about for 3.333 and we have split 3 plus 0.33 because there is 0 before decimal point, but here there is 1 before decimal point.
So what to do? Subtract this one by this number. So 127 minus 1 is nothing but 126 plus. Now we have to do plus. Now write it as 126. Here there is 127. So add 1. So 1.272727 so on. यहाँ पे हमें क्या करना है? हमने यहाँ पर 127.272727 है, हमें स्प्लिट करना है यहाँ पे, ठीक है। सो क्या करो, पहले एग्जांपल में यहाँ पॉइंट के पहले 0 था, यहाँ पॉइंट के पहले 1 है, ठीक है। सो ये 1 को यहाँ पे से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचा 126 प्लस कर दो। अब ये जो नंबर है वो यही लिख दो एज इट इज। सो 1.272727 एंड सो ऑन। सो इन द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर 100x equals to, in place of this may I put x, so 126 plus x. Now what to do? Separating variable, यानी हम यहाँ पर ले जाएंगे x को और ये 126 वहां पे रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा therefore 100x, here there is plus, if you place here then it will be becomes minus x equals to 126. So now subtracting it, 100x minus x, that is 99x is equals to 126. I have to find the value of x, so take 99 over here. So therefore x is nothing but 126 divided by 9. Now may I do cancellation? So 9 11s are 9, 1s are 9 and 4s are 36. So your value of x is therefore x equals to 14 by 11. This is of the form p by q. So I may write that 1.272727 is equals to 14 by 11. ओके, पहले हमने क्या किया, जो वैल्यू को हमें p बाई क्यू फॉर्म में रखना था उसे हमने x सपोज कर दिया। फिर हमारे पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, दो डिजिट्स रिपीट हो रहे थे। सो क्या करो, 2 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हम दोनों से 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 100x इज इक्वल। अब मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा राइट साइड चला जाएगा 2 स्टेप्स। सो ये हो जाएगा 127.272727 एंड सो ऑन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू स्प्लिट दिस, हमें ये स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, तो ये 100x इक्वल्स, अब स्प्लिट करने में क्या करना है, पॉइंट के पहले अगर डेसिमल के पहले अगर आपका कोई नंबर हो तो नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर 0 है तो कोई बात नहीं है, तो वो एज इट इज रहेगा। सो ये 127 में से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो 126 बचा प्लस जो नंबर x है वही आपको लिख देना है, ठीक है। सो 100x इक्वल्स टू 126 प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ x वी हैव सपोज्ड। नाउ हमें x को यहाँ पे ले जाना है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 126, 100x माइनस x दैट इज 99x इज इक्वल्स टू 126। सो x becomes 126 divided by 99, that is nothing but 14 by 11. So I may write 1.272727 up to infinite is equals to nothing but 14 by 11. Okay, get it? Let us do example number 9. It is same as this. The difference is there are 3 repeating numbers after decimal point. Difference क्या है, हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद हमें उसमें 3 डिजिट्स रिपीट होते हैं। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 9। सो डेट 0.235235 up to infinite is nothing but 0.235 bar can be
expressed in the form P divided by Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0. This is the example number 9. Same as example number 8. The difference is only we have 3 digits repeating after decimal point. Okay. So आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है, ठीक है, कहीं पे पता ना चले तो ध्यान देना उसमें. So what is the solution? What we are doing is we will first suppose it as x. So let x equals to 0.235, 235, 235 and so on. Here bar, what is the meaning of bar? It is repeating 235, 235, 235. Okay. So we have support this number as x. What is the next step we are doing? After decimal point, we have 3 digits repeating. So we will multiply both the sides by 1000. So multiplying both sides by 1000. Okay. What we get? So 1000 multiplied by x is equals to 1000 multiplied by 0.235, 235, 235 and so on. Okay. हमने क्या किया, दोनों साइड में 1000 को मल्टीप्लाई किया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स रिपीट हो रहे. हमने आगे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे थे तो 100 से मल्टीप्लाई किया. 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई किया. या 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. ओके. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? लेट अस मल्टीप्लाई दिस टू. 1000 multiplied by x is nothing but 1000x is equals to, here 1000 multiplied by this number. What is the answer? What we have to do is we have to take this point 3 sides to the right, because here there are 3 zeros. Okay. So the answer is 235.235, 235, 235 and so on, repeating. Now what is the next step? We have to split this number. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें ये नंबर को स्प्लिट करना है. ओके. सो 1000x इज नथिंग बट, हाउ टू स्प्लिट दिस नंबर? हमें इसको स्प्लिट कैसे करना है? सो मैंने जैसे बताया, इसमें डेसिमल के पहले 0 ही है तो हमें ये नंबर को एज इट इज रख देना है, यानी ये 235 प्लस कर दो, आफ्टर डेसिमल जो भी नंबर है वो लिख दो. सो 0.235, 235, 235 and so on. Okay. The next step is nothing but we have to put in place of this as x, because this is the x. Okay. So let us put x over there. So therefore, what is the value? 1000x is nothing but 235 plus x. Next step is what? We have to take this x on the left hand side. So the value is 1000x. Here it is plus. If we will bring it over this side, it will become minus. So minus x equals to 235. So 1000x minus x is nothing but 999x. यहाँ पर हमारा x ही है, x यानी हमारा यहाँ 1 होना चाहिए. ठीक है. तो 1000 minus 1 999 और ये x. तो ये 999x equals to nothing but 235. So what is the value of x? अब हम ये यहाँ पे ले जाएंगे. So therefore x equals to 235 by 999. अब इसको हम कैंसलेशन तो कहीं से भी नहीं कर पाएंगे. ये कर पाएंगे? 3 से होगा क्या? देखते हैं. 3 7 21 नहीं होगा. ठीक है. तो हमें इसको ये नंबर में ही रहने देना है. ओके. So what we write as? So 0.235, 235, 235 and so on is nothing but 235 divided by 999. So this is the number. एक बार और समझा रहा हूं. हमें ये जो नंबर दिया है उसको p by q फॉर्म में पुट करना है, कन्वर्ट करना है.
सो हम क्या करते हैं, इसको x सपोज कर लेते हैं. वी विल सपोज इट एज x. नाउ after decimal how many numbers are repeating? 3 numbers are repeating. So what we do? We will multiply both the side by 1000. हम 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. So next step is this is 1000 multiplied by x is 1000x is equals to 1000 multiplied by this number. What we will do here is, here there is point and here there are 3 zeros. So take this point to the right side after 3 decimal points. So this number becomes 235.235 235 235 and so on. 1000 है, पॉइंट है तो 3 जीरो है, तो हमें ये डेसिमल पॉइंट को 3 टाइम्स हमें उस साइड ले जाना है, राइट साइड पे. ठीक है. तो ये नंबर हमें ये मिल जाएगा. नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू स्प्लिट दिस नंबर. सो दिस इज 1000x इक्वल टू हाउ वी आर गोइंग टू स्प्लिट. सो हियर बिफोर पॉइंट देयर इज 0. पॉइंट के पहले 0 था, तो हमें कुछ नहीं करना है. पॉइंट के पहले यहाँ पे जो नंबर हो एज इट इज रख दो, प्लस जो ये वाला नंबर है वो ले लो, या तो यहाँ पर जो भी है वो ले लो. ठीक है. अगर यहाँ 1 होता है तो क्या करते हैं, हम इसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ओके. सो ये हमें मिल गया. इसके जगह हम एक्स पुट कर देते हैं. एक्स यहाँ पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. इज इक्वल टू 235. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 999x इक्वल टू 235. तो x इज नथिंग बट 235,999. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10. What is example number 10? Find an irrational number between 1/7 and 2/7. What we have to do is we have to find an irrational number between 1/7 and 2/7. इरेशनल नंबर से हमें सिर्फ एक ही पता चलता है कि वो हमारा कैसा होगा इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर. सो हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो क्या करें, हम पहले इसके डेसिमल एक्सपांशन करते हैं 1/7 एंड 2/7 को. ठीक है. सो डिवाइड इट बाय दिस. हियर देयर इज 1 डिवाइडेड बाय 7. फर्स्ट वी विल पुट इट 0. तो ये हमारा 0 हो जाएगा. So 0 7 1 is 7. Subtract it. 10 minus 7 3. Here it is 0. अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देते हैं. तो 7 4 से 28 हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट कर दो. So 10 minus 8 2. ये 2 minus 2 0 हो जाएगा. वापस 0 पुट करेंगे. So 7 के टेबल में 20 कब आता है, नहीं आता. 21 आता है, बड़ा हो जाएगा. So 7 2 जा 14 ले लेते हैं हम. ठीक है. सो 10 ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. वापस 60 0 आ गया. तो 8 जा 56, ये 10 ये 5, तो ये 0 हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 4 हो जाएगा. ठीक है. अब वापस 0 पुट करेंगे. वापस 5 जा 35, वापस 10 तो ये 5 हो गया. वापस 3 ये 0 हो गया. वापस 0 पुट करेंगे, ये रिपीट हो जाएगा. यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. तो 50 को वापस 7 से डिवाइड करना है. 7 के टेबल में कब आएगा, 50 आता है, नहीं आता. 7 7 का 49 आता है. सो मैं यहां लिख रहा हूं 49. सब्ट्रैक्ट इट 1 4 0. देखो ये रिपीट हो रहा है वाला. अब वापस होगा वही आएगा. देखो 1 जा 7. अभी यहां से रिपीट ही होने वाला है. सो हम 1/7 को कैसे लिखेंगे. सो हियर 1/7 को हम कैसे लिखेंगे, 0.142857 बार. इसको हम ऐसे लिखेंगे. सेम वे व्हाट टू राइट फॉर 2/7. और 2/7 के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो 2/7 के लिए आप कैसे करोगे. देखो 2/7 है, हमारे पास 1/7 की वैल्यू मिल गई. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू तो हमें मिली गई है 0.142857 बार. सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 7 जा 14, 4 1 कैरी बचेगा, 10 और 1 11 हो जाएगा. देखो ऐसे 0.142857
मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, ये 14 1 कैरी, 10 और 1 11, 16 प्लस 1 17, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 पॉइंट और ये 0, यानी हो जाएगा हमारा 0.285714 बार. Okay, so this is the value of 2.2/7 and this is the value of 1/7. So in between these two numbers we have to find irrational number. So in between these two numbers there are infinitely many irrational number. ये दो नंबर के बीच में तो ऐसे कितने सारे irrational नंबर मिलेंगे हमें, ठीक है, तो हमें कोई भी एक लिखना है. So here there are infinitely many irrational numbers between 1/7 and 2/7. हमें बहुत सारे मिलेंगे बट हमें एक ही लिखना है. सो 1 इज, कोई भी एक लिख दो. अब इरेशनल नंबर फाइंड करना है, यानी वो हमारा कैसा होगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. सो 1 इज कौन सा, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. 0 पॉइंट, यहां पर 4 है तो हम 4 के बाद ले लेते हैं. 1501, 15001, 1500001 एंड सो ऑन. तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है. तो दिस इज एग्जांपल 10, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. ओके, क्या करना है, पहले कुछ नहीं करना है, 1/7 और 2/7 के डेसिमल एक्सपेंशन कर दो, उसके बीच में एक इरेशनल नंबर कोई भी फाइंड कर दो. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, classify the following numbers. Classify the following numbers as rational और irrational. ओके, हमें क्या करना है, सब नंबर को क्लासीफाई कर, जो है जो नंबर में लिखूंगा वो रेशनल है या इरेशनल है वो हमें देखना है. सो फर्स्ट वन इज √23, second is √225, third is 0.3796, fourth is 7.478478 and so on, and fifth is 1.101 001 001 401 एंड सो ऑन. सो हमें कुछ नंबर्स दिए गए, इसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन से रेशनल नंबर्स है और कौन से इरेशनल नंबर्स है. सो रेशनल और इरेशनल हमें कैसे फाइंड करना है, आपको सबको पता है. रेशनल यानी जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा. इरेशनल में कौन से हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स. सो हियर √23 से परफेक्ट स्क्वायर, नो, 23 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी हमें कुछ प्रॉपर वैल्यू या तो कुछ रिपीटिंग नंबर्स मिलेगा, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज नथिंग बट अवर रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर. वाई इरेशनल, हम रूट का वैल्यू निकालोगे तो आपको पॉइंट के बाद है ना कोई भी नंबर रिपीट नहीं मिलेगा और इनफाइनाइटली मैनी मिलेगा. आप कैलकुलेटर में ट्राई कर सकते हो, ठीक है. √225 और 225 परफेक्ट स्क्वायर है, यस ऑफ कोर्स. 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225 होगा. सो ये हम इसको 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो ये हमारा प्रॉपर वैल्यू मिली है ना, यानी हमारा कैसा होगा, रेशनल नंबर, ठीक है. 0.3796 ऑब्वियसली हमें कुछ प्रॉपर टर्मिनेटिंग मिलेगा. टर्मिनेटिंग ये यानी हमारा कौन सा होगा, ये रेशनल नंबर ही होगा. ओके, सेम वे 7.478478 एंड सो ऑन. देखो पॉइंट के बाद हमारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं,
नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और इनफाइनाइटली, यानी हमारा कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी हमने ग्राफ में देखा था वो हमारा कैसा होता है, रेशनल नंबर। So this is also rational number. Last is 1.101, 001, 0001, 401 and so on. देखो आफ्टर डेसिमल नन ऑफ द नंबर आर रिपीटिंग, एक भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है और वो इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स है। सो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, सेम एज फर्स्ट। सो दिस इज आवर इरेशनल नंबर। सो ये क्लासीफाई में कैसे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड एंजॉयड my lecture. So what you have to do, you have to revise this, you have to practice it till the next video. Okay, till then, Jai Hind, Jai Bharat, bye.